Hello friends, today we are going to start type 6, which is the continuity of a composite function. कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, एफ एंड जी अगर दो फंक्शन है उनका कंपोजिशन क्या होता है, या तो जी ओ एफ और एफ ओ जी। लेकिन कंपोजिशन पॉसिबल है कि नहीं वो पहले चेक करना पड़ता था चैप्टर 1 में। यहाँ तो जो दो फंक्शन दिए जाते हैं, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले क्या है कि स्टार्टिंग में हम क्या करते थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं वो चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट फाइंड करते थे, राइट हैंड साइड का लिमिट फाइंड करते थे और मेन लिमिट भी फाइंड करते थे, मतलब एफ की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती थी तब हम बोल सकते थे कि ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। लेकिन लास्ट दो लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं कि जो मान लीजिए कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो उनका जो एडिशन है वो कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो हमें सपोज साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और ऐसे कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि जो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है वो कंटिन्यूस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, तो उसका जो सम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो कंटिन्यूस हो ही जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर नहीं हमें यूज करना है। हमें तो यहाँ पे क्या करना है कि दो फंक्शन अलग अलग एफ एंड जी हमें दिए जाते हैं, तो दोनों का कंपोजिशन हमें चेक करना है कि कंपोजिशन पॉसिबल है या नहीं। तो पहले मैं आपको एक कंपोजिशन का एक सिंपल इलस्ट्रेशन दे देता हूं। फॉर एग्जांपल a is equal to 1 2 3 4, suppose b is equal to 1 2 3 4 and 5, suppose c is equal to 1 4 9 16 25 and 36. Now here suppose a to b, fx is equal to x plus 1, suppose g वो b to c, gx is equal to x square। अच्छा, हम अब क्या है, f a to b है, fx is equal to x plus 1। The domain of function f is a and a is equal to 1 2 3 4, so we can find the values of f, which is, for example, f1 is equal to 1 plus 2, 1 plus 1, so 2, f2 is equal to 3, f3 is equal to 4, and f4 is equal to 5. You can see the whole values of fx belongs to b, because b is the codomain. Now find the range of function f. The range of function f is 2, 3, 4 and 5, and it is the subset of b. So Rf is subset of b and b is the domain of g, so we can say Rf is subset of dg. If Rf is subset of dg, मतलब f का जो रेंज है वो g का जो डोमेन है उनका सबसेट बन जाता है। तो Rf is subset of dg, then the composition of f and g is possible. So f and g, f and g will be composite. The composite function is composite function
what is the composite function? It is known as GOF because this is the composition of f and g. It is denoted by GOF, GOF. GOF A2 GOF मतलब take domain of first function f and codomain of second function g. So A to C and GOF x is equal to g of fx, right? Now what is fx? Fx is equal to x plus 1. Put x plus 1 in g, so it is x plus 1 whole square. You can see GOF x is equal to x plus 1 whole square. If we are putting the values from a, 1 plus 1, it is 2, 2 square 4, and whole values belongs to c, a to c. In this way, we can find GOF. तो कोई भी दो फंक्शन है, यहाँ पे GOF मतलब composition of f and g is possible, but composition of g and f does not possible. You can check it. But just I want to introduce how can the composition of two function is possible or not. You can see if the domain of first function मतलब R is the range of first function मतलब R is subset of domain of second function मतलब DG. If R is subset of DG, then composition of f and g is possible. Now we want to check continuity of these kinds of composite function. Let us see. Example number 31 from 5.1. Question is, show that the function defined by fx is equal to cos x square is a continuous function. यहाँ पे आपको यह तय करना पड़ेगा कि जो cos x स्क्वायर है वो कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है. अगर ये आपको पता चल गया तो आसानी से आप कह सकेंगे मतलब कि ये फंक्शन कंपोजिट है, f इज कंटिन्यूस. तो मैं पहले क्या एज्यूम करूंगा, सपोज x स्क्वायर है तो hx इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू cos x. मैं दो फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं. यहां पर है h r to r, hx is equal to x square. It is polynomial. So h is continuous on R, correct? Because hx is polynomial function and polynomial functions are always continuous. Now second function is g. It is also R to R and gx is equal to cos x is trigonometric function. So g is also continuous. You know very well, function g, why function g is continuous? Because function g is trigonometrical function and
trigonometric functions are always continuous on their own domains. So g is continuous. If h is continuous, g is continuous. अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा. लेकिन हमें जो भी दिखाना है यहाँ पे शो करना है वो cos x स्क्वायर, इसका जो कंपोजिशन है वो cos x स्क्वायर मिल जाना चाहिए. इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो cos x स्क्वायर मिल जाना चाहिए, तब हम बोल सकेंगे कि ये फंक्शन cos x स्क्वायर कंटिन्यूस है. तो मैं इसका कंपोजिट फंक्शन फाइंड करता हूँ. मैं h एंड g दोनों का कंटिन्यूस कंपोजिट फंक्शन क्या बनेगा? The composite function of h and g is denoted as GOH. Composite function of h and g is GOH. So first function is h and second function is g. Now write down the domain of h and codomain of g, but it is R2R by default. So g of hx is equal to g of hx. G, what is hx? Hx is equal to x square. Now put the value of x in g. It is cos x. Write down x square instead of x. So it is cos x square. Now you can see this is fx. अगर आप बोल सकते हैं कि h कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस रहेगा. वो मतलब cos x square is continuous. So fx is continuous. So fx is equal to cos x square is continuous. It is proved, right? तो फिर से एक बार आपको समझा देता हूं. पहले तो जो भी फंक्शन यहाँ पर दिया गया है वो f, it is given, function f is given in question. So we cannot assume f. We are assuming hx and gx because f is given. So two new functions hx and gx. Now अगर मैं h और g दोनों का कंपोजिशन करता हूं तो मुझे GOH मिलता है, और वो ये क्वेश्चन जो दिया गया है वही यहाँ पर मिल जाता है. तो GOHX is equal to g of hx. पहले तो मैंने h एज्यूम किया, hx is equal to x square. x square पॉलिनोमियल है तो बाय वो तो कंटिन्यूस ही है. g function is also continuous because gx is equal to cos x. It is trigonometrical function, so it is also continuous. Now the composition of h and g, it is denoted by GOH, and GOH is equal to cos x square. If h is continuous, g is continuous, then h or g is मतलब GOH is also continuous. So fx is equal to cos square is continuous. अगर इस मान लीजिए कि fx is equal to cos x square दिया गया होता तो आपको यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो बदलना पड़ेगा. वहां पर GOH के बजाय HOG लेना पड़ेगा. अगर HOG assumption तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो h and g का जो मैंने कंपोजिशन किया वहां पर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा. वो चेंज क्या होगा? g and h. So it is HOG and वो मिलेगा cos square x. तो आप बता सकते हैं कि cos square x भी कंटिन्यूस है. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये सब दिया गया होता fx is equal to sin x square, then totally same. just यहाँ पे cos नहीं एज्यूम करना, यहाँ पे sin फंक्शन लेना पड़ेगा. gx is equal to assume sin x. बाकी कोई चेंज नहीं, सभी सेम ही. इस तरह ही ये क्वेश्चन चलेगा. मान लीजिए
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया गया होता, तो फिर से यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो चेंज करना पड़ेगा, HOG लेना पड़ेगा। तो एक सम अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो तो ये 3 सम आप आसानी से कर सकोगे। दूसरा एक सम है 30 सेकेंड मतलब 32, वो भी एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से लिया गया है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय x is equal to mod cos x is continuous. यहाँ पे fx is equal to mod cos x. let पहले एज्यूम करते हैं, let hx is equal to mod x and gx is equal to cos x. मुझे तो क्या करना है कि h और g का कंपोजिशन करना है। अगर mod x मिल जाता है तो मैं आराम से कह सकूंगा कि फंक्शन है इज कंटिन्यूस। तो पहले मैंने एज्यूम ऐसी तरह किया है कि hx is equal to mod x. Now domain of h is R2R, codomain and codomain. hx is equal to mod x is continuous. क्योंकि आप जानते हैं कि mod फंक्शन कंटिन्यूस है R पर, modulus function is continuous on R. It is the basic principle. Now function g, it is gx is equal to cos x. It is trigonometrical function, is continuous on R. All trigonometric functions are continuous on their own domains. The domain of cos function is R. दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हमें उसका कंपोजिशन फाइंड करना है। अगर कंपोजिट फंक्शन ये मिल गया तो हम बता सकते हैं कि fx is equal to mod cos x कंटिन्यूस है। तो हमें कंपोजिशन फाइंड करना है GOH, composition of H and G. It is denoted by GOH. G of hx, मेरे पास hx है mod x। अच्छा, mod x मुझे यहाँ gx में g of mod x, so I have to put mod x instead of x, so it is cos mod x, so it is fx. So from result 1 and 2, H is continuous, G is continuous, that is why GOH X is continuous. If GOH X is continuous, then fx is equal to cos mod x. Cos mod x is continuous. यहाँ पर so that the function defined by fx is equal to mod cos x, मैंने यहाँ GOH लिया है, hx is equal to mod x and hx is equal to mod x and gx is equal to cos, तो
जो यहाँ जो सम प्रूव हुआ है वो थोड़ा अलग प्रूव हो गया। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन cos mod x, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सम है, fx इक्वल टू cos mod x। तो आप देख सकते हैं कि ये cos mod x इज कंटिन्यूस, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो क्वेश्चन इस तरह है, fx इज इक्वल टू mod cos x। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए जो पहले वाला सम था वही मुझे प्रूव करना है, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ में जो एजम्पशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एच एस इज इक्वल मॉड एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वही रहेगा। दोनों का जो एच आर टू आर एच एक्स इज इक्वल मॉड एक्स कंटिन्यूस, जी आर टू आर जी एक्स इज इक्वल कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अब यहाँ पे एच ओ जी फाइंड करना पड़ेगा, एच ओ जी। तो एच ऑफ जी एक्स, h of gx, h o g x is equal to h of gx। अच्छा, h of gx क्या होगा? gx is equal to cos x है। ये मुझे h में सब्स्टिट्यूट करना है, तो I have to write cos x instead of x, so it is mod cos x। Now you can see the question number 32 given in textbook, it is mod cos x। Actually मैंने क्या किया, पहले जो प्रूव कर दिया है वो cos mod x का ये सब मैंने प्रूव कर दिया, वो ये एक्स्ट्रा सम है तुम्हारे लिए। लेकिन जो ये 32 एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में वो इस तरह का है, mod cos x। तो आप ये भी समझ सकते हो कि फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 यहाँ पे g is continuous, h is continuous, so HOG is also continuous, so fx is equal to cos mod x is continuous on R। अच्छा, यहाँ पे दो और सम भी हम ले सकते हैं। सपोज ऐसा कोई सम है sin mod x, क्वेश्चन ये पूरा सेम रहेगा। आपको यहाँ पे एच एक्स इज इक्वल टू ये एज्यूम करना है, बट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की बजाय साइन एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। और अगर आप जी ओ एच फाइंड करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन मॉड एक्स। अच्छा, मान लीजिए दूसरा एक सम है जी एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। एक्चुअली क्या है कि ये जो मान लीजिए एज्यूम करने में अदल बदल हो जाएगी बाई चांस, तो अगर आप GOH फाइंड करेंगे तो एक सम ये पहले वाला सम प्रूव हो जाएगा। अगर आप HOG फाइंड करेंगे तो ये दूसरे वाला सम प्रूव हो जाएगा। तो एजम्पशन में कोई यहाँ पे बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ GOH और HOG का ही डिफरेंस समझना है। अगर आप GOH लोगे तो cos mod x प्रूव हो जाएगा, अगर आप HOG लोगे तो mod cos x प्रूव हो जाएगा। सेम वे अगर आप साइन वाला फंक्शन प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ gx इज इक्वल टू यहाँ पे आपको sin x लेना पड़ेगा, बस इतना ही बात है। Example number 33, 5.1. Examine that sin mod x is a continuous function। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 32 जब मैंने आपको समझाया तभी आपको बता दिया है, तो ये पूरा सम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेट fx इज इक्वल टू mod x एंड gx इज इक्वल टू sin x। तो
बस ऐसा एज्यूम कर लेना। और अब आपको क्या करना है, फंक्शन एफ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नहीं देता हूँ, फंक्शन एफ R2R fx is equal to mod x is continuous on R. Function g is sin x, it is also continuous on R. So the composition of f and g, it is called GOF, is continuous on R, and GOF is sin mod x, right? So sin mod x is continuous on R. Now the last question. 5.1, find all points of discontinuity of f defined by fx is equal to mod x minus x plus 1. यहाँ पे दो फंक्शन है, उनका सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ पे हमें थोड़ा अलग से सम करना पड़ेगा। सपोज hx is equal to, let hx is equal to mod x and gx is equal to x plus 1, right? h R2R where hx is equal to mod x is continuous on R because mod function is continuous, right? अब h and g दो फंक्शन है, तो मुझे इसका कंपोजिशन करना है। g o h R2R। पहले मैं ये बता दूं कि जो gx फंक्शन है, वैसे तो आप जानते हैं gx is equal to x plus 1, it is polynomial। So it is continuous। तो दो फंक्शन h एंड g दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा GOH R2R, GOHX is equal to G of HX। G of HX, what is HX? It is mod x। Now put यहाँ पे GOH के बजाय हम HOG फाइंड करते हैं, सॉरी HOG R2R, HOGX is equal to H of GX। H, what is GX? GX is x plus 1। Now put x plus 1 instead of x in h, so it is mod x plus 1। तो मैंने क्या प्रूव किया, GOH का मुझे यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने HOG इसलिए मुझे लेना पड़ा, राइट? HX is equal to mod x and GX is equal to x plus 1। ये थोड़ा मान लीजिए PDF में उल्टा मैंने एज्यूम किया है। यहाँ पे hx is equal to मैंने x plus 1 मतलब gx is equal to mod x एज्यूम किया है, और hx is equal to x plus 1, तो इतना थोड़ा फर्क रहेगा, तो वहाँ मुझे GOH फाइंड करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं फाइंड कर रहा हूँ वो इस हिसाब से फाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ क्या है कि मुझे HOG और GOH दोनों फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे HOG फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, HOGX is equal to mod x plus 1 मिला, तो प्रूफ क्या हुआ
कि h कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन x प्लस वन, mod x प्लस वन इज कंटिन्यूस, सो h और g इज कंटिन्यूस। इसमें तो कोई समझने में आसानी है। अच्छा, एक तो mod x इज इक्वल टू मैंने एज्यूम किया है hx, so hx minus hogx is also continuous। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। तो डिफरेंट वाला फंक्शन कौन सा है? fx। तो इस तरह fx is equal to mod x minus x plus 1 is continuous on R. So the discontinuity of, मतलब मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है कि इस फंक्शन R की कोई भी वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो देयर इज नॉट, हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन R की कोई भी वैल्यू पर, कोई भी पॉइंट पर, कोई भी संख्या पर डिसकंटिन्यूस नहीं बनेगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे।